again with a new video for class 11. It is second part of the chapter Living World, the very first chapter. In first part we have discussed a lot of things और इस चैप्टर में इस पार्ट में हम लोग उसके आगे देखेंगे। आज के इस वीडियो में हमें देखना है what is taxonomic category and what are taxonomic categories. Okay, so let's begin with the previous one. पहले हम लोगों ने सीखा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन हमने सीखा था means once the organism based on resemblance with already known organism is given an identity with a name, it is grouped with similar one. This was classification. So classification is a mode of organizing organism or group of organism into categories according to a system plan as per nomenclature system. So बस उन्हीं चीज़ों पे आज हम लोग बात करेंगे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या होते हैं? What are taxonomic categories? C. Classification involves hierarchy of steps in which each step represent a taxonomic category. Right? तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, you are keeping the organism in different group and these groups are taxonomic category. The main aim of taxonomic study is to assign an organism an appropriate place in a systematic framework of classification, and this framework is called taxonomic hierarchy, or in simple word, all taxonomic hierarchy together constitute all taxonomic category together constitute taxonomic hierarchy. जितने भी taxonomic category हैं एक साथ उसको रख दीजिए. Now it is called taxonomic hierarchy. Correct? अब देखिए, each category represent a unit of classification. हर एक category unit of classification कहते हैं. In this way, category, phylum, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species, these are category. These category represent a unit of classification. Right? And now see what is taxon. Taxon क्या है? See this taxon, a group of organism. Mind it, group of organism occupying a particular category. मान लिया जाए कि इस क्लास में देखें, मान लो कि this class is mammalia, suppose. ठीक है? तो mammalia में जितने भी organism आएंगे, these all organism together forming taxon. A group of organism occupying a particular category is called a taxon. इसका plural taxa होता है, तो this is taxon. तीन चीजें हमने देखा. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखा, नंबर 1. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको कह रहे हैं? एक्चुअली इट इज रैंक. क्लासिफिकेशन के अंदर ये रैंक है. क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स, जिसमें हर एक स्टेप को आप एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं. ऑल कैटेगरीज टुगेदर अगर एक साथ ले लें, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, सबको एक साथ ले लें तो आप उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं. Each category represent a unit of classification, right? Or a group of organism occupying a particular category. अब kingdom में देखो, मान लो कि kingdom में हमने रखा है plant, हमने रखा है animals, ठीक है? तो group of animals का एक category हो गया, plant का एक अलग category हो गया. तो group of organism occupying a particular category is called taxon. Kingdom में plant जिसमें रखा plant kingdom, animal जिसमें रखा animal kingdom कह सकते हैं. So a group of organism occupying a particular category is called taxon, right?
Now see the taxonomical hierarchy in ascending order. See this. सबसे पहले आता है किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम और डिवीजन, डिवीजन के बाद आएगा क्लास, क्लास के बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको देखें, द स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज, राइट? And group of species, genus, closely related group of genus, family, closely related group of family, order, and similarly and so on. And now the taxon, kingdom. Taxon is Animalia or maybe Plantae. See this, Chordata, Mammalia, Primata, Hominidae, Homo, and Sapiens. Right? So it is taxonomical hierarchy in ascending order, right? तो आपको समझ में आ गया होगा taxonomic category क्या है। Now see species. See the images, see the diagrams. Species क्या है? It is a group of closely related organism capable of interbreeding to produce fertile offspring. बात समझिए क्या बोल रहे हैं। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जन्म दे सके, दिस इज कॉल्ड स्पीसीज एंड इट इज द लोएस्ट कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो स्पीसीज क्या है? स्पीसीज का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। और ये टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में देखें तो ये लोएस्ट पे आएगा, सबसे नीचे है यूनिट। सी, a species is having C, some common name, generic name and a specific epithet, right? See this. See this table. Mango, generic name is Mangifera, a specific name is Indica. Similarly, potato, generic name is Solanum and the species is Tuberosum. Nightshade देखें, Solanum nigrum, see here. Solanum similar, but the species are different, right? Brinjal, genus का नाम Solanum, specific epithet Melangina. Lion का देखें Panthera leo, tiger देखें Panthera tigris, leopard देखें Panthera pardus, modern man Homo sapiens. So species यही है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीडिंग कर सके, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग दे सके, स्पीसीज कहलाते हैं। देयर आर सम एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन, वो आप देख सकते हैं, है ना? तो सिमिलरली यू कैन सी इट इज डिफरेंट वन, इट इज डिफरेंट वन, ओके। नाउ जीनस, इट इज द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, वैसे स्पीसीज जो आपस में काफी क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल्स, यू सी द एग्जांपल जीनस सोलानम। अगर इस सोलानम में देखें, यू कैन सी दिस, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जीनस में क्या आप देख रहे हो, यू कैन सी जीनस पैंथेरा, जीनस सोलानम एंड जीनस फेलिस, यू कैन सी दिस वन। अब इसमें आप देखो, genus is the Solanum, but the species is different. Tuberosum, Lycopersicum, Melangina, but the species are different, but the genus is Solanum. So it is a group of organism. It is a group of species. कैसा group? Closely related group of species, and that is going to form genus, right? Similarly, see this,
जीनस पैंथेरा को देखें तो पैंथेरा में देखो, पैंथेरा, these all are lion, leopard, tiger, they all belong to the same genus, but the species different, but these are closely related species. So this is genus. So Felis में देखें house cat, Felis domesticus, jungle cat है, this is Felicus cos. ठीक है, तो यहाँ भी आप देखो species is different, but they all belong to the similar genus Felis. क्यों similar है? Because they looks very similar to each other. इनके features आपस में मिलते हैं. You can see इनके features आपस में काफी मिलते हैं. इनके features आपस में काफी मिलते हैं. So it is the aggregate of closely related species, right? अब बात करेंगे family. It is a group of related genera. ये genus का group है. कैसा group? Related group. You see this? Family Solanaceae. अब इस Solanaceae के अंदर हम लोग कई अलग अलग जीनस को रख रहे हैं, जैसे Solanum, you can see Solanum, Petunia, Datura. They all are different species, but they are having some characters in common. That's why they are kept in this family Solanaceae. Similarly, family Phalidae. Okay, so genus Panthera, genus Felis, that is the cat family. Okay, cat family, they all are, means अगर genus wise देखें तो Panthera is different, Felis is different, but they are having some characters in common. So that's why they are kept in a single family Felidae. इसको Felidae में रखा गया. तो आपको देखना है family में it is a group of related genera, यानी ऐसे जीनस का ग्रुप जो आपस में रिलेटेड हो, उसके फीचर्स आपस में मैच करते हो, राइट? जैसे सोलेनेसी में देखा, सोलैनम, पिटूनिया, धतूरा, दिखने में ये सब अलग अलग दिख रहा है, बट दे आर हैविंग सम कैरेक्टर्स इन कॉमन, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन फैमिली सोलेनेसी, इन अ सिंगल फैमिली, राइट? सो दिस इज फैमिली. अब बात करेंगे ऑर्डर का. व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर मींस इट इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. ये फैमिलीज का ग्रुप है, रिलेटेड फैमिली का ये ग्रुप है जिसे हम लोग ऑर्डर कहते हैं, राइट? इट इज द नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी व्हिच इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिली, राइट? से दिस, फॉर एग्जांपल ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, यू सी. अब इसमें हम लोग कई फैमिली को एक साथ रख रहे हैं. लाइक ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में देखें तो वी आर कीपिंग द फैमिली लाइक कॉनवॉल्वुलेसी, सोलेनेसी. इन दोनों को इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इसलिए रख रहे हैं बिकॉज इस दोनों फैमिली के फीचर्स बहुत हद तक आपस में मिलते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन सिंगल ऑर्डर. सिमिलरली कार्निवोरा में देखो, ऑर्डर कार्निवोरा एनिमेलिया के लिए है. फेलिडी और कैनिडी, ये दोनों जो फैमिली है, दे आर डिफरेंट फैमिली, but they are having some characters in common, so they all are kept in a single order Carnivora because these families are related with each other. तो ये order हुआ. It is the assemblage of related families. समझ गए? चलिए अब आगे बात करेंगे. अब बात करेंगे क्लास का. क्लास किसको कहेंगे? द कैटेगरी which include one or more related orders. It is the assemblage of related orders. See the example. अब बात करेंगे, जैसे प्लांट का ले लें तो प्लांट में रखा है डाइकोटिलेडोनी, मीन्स दे आर डाइकोट प्लांट. क्लास हो गया. अब इसके अंदर देखिए दो अलग अलग ऑर्डर रखा है, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड ऑर्डर सेपेंडियल्स. ऑर्डर वाइज देखें दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट इनके फीचर्स कुछ कॉमन होने की वजह से दे आर केप्ट इन सिंगल क्लास. सिमिलरली ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें हम लोग
मैमल्स और दूसरे को रखते हैं ऑर्डर कार्निवोरा। अब इसको अगर देखोगे दे ऑल आर डिफरेंट, यू कैन सी दे आर डिफरेंट बट दे आर हैविंग सम कैरेक्टर्स इन कॉमन। इसके भी कैरेक्टर्स कॉमन है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर kept under a class, a common class, mammalia. So class is the assemblage of related orders, right? Now see phylum or division. Phylum or division क्या है? This category include one or more related classes. So it is the assemblage of related classes. In case of plant, the related class for division. Plant है तो उसमें division बोलना, animal में generally हम लोग phylum बोलेंगे. So प्लांट में देखिए डिवीजन एंजियोस्पर्मी। अब इस डिवीजन में देखो इसके अंदर दो क्लास रखा हुआ है, डाइकोटिलेडोनी एंड मोनोकोटिलेडोनी, राइट। ये देखा जाए तो दोनों क्लास फीचर वाइज अलग है, मोनोकोट प्लांट्स अलग होते हैं, डाइकोट प्लांट्स अलग होते हैं, बट दे आर हैविंग सम फीचर्स इन कॉमन, दैट्स व्हाई दे ऑल आर केप्ट अंडर द डिवीजन एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी में इसको रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि इस दोनों क्लास आपस में काफी हद तक मिलते जुलते हैं, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अंडर कॉमन डिवीजन। सिमिलरली अगर कोर्डेटा में देखें तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मैमेलिया ये सब अलग अलग क्लास हैं, बट दे ऑल आर सम कॉमन फीचर्स, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन फाइलम कोर्डेटा, राइट। अब बात करेंगे हम लोग किंगडम का। सिमिलरली किंगडम भी वही है, द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फाइला और डिवीजन, हाईएस्ट कैटेगरी है ये। सी दिस किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। अब किंगडम प्लांटी के अंदर कई सारे डिवीजन्स आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल एंजियोस्पर्मी, यू कैन सी जिम्नोस्पर्मी, कई डिवीजन है, तो सारे मिलते जुलते डिवीजन्स को एक में रखा गया एंड दिस इज फ्रेमिंग द किंगडम। उसी तरह से एनिमेलिया में देखो कोर्डेटा को, आर्थ्रोपोडा को एक साथ रखा गया, सो दिस इज द हाईएस्ट कैटेगरी, राइट। तो ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब कुछ एग्जांपल्स आप ले लें टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। यू कैन सी दिस किंगडम, से दिस किंगडम घटता चला जाएगा। फीचर्स देखिए जैसे जैसे किंगडम टू स्पीसीज आएंगे, नैरोइंग डाउन कैरेक्टर्स को करते चले जाते हैं। देखिए वी आर एक्चुअली नैरोइंग डाउन द कैरेक्टर्स एज पर द फीचर्स। सी अगेन, अब फिर से देखो, किंगडम इज द ब्रॉड कैटेगरी, ये सबसे बड़ा। अब इससे छोटा फाइलम कोर्डेटा, तो जैसे ही आएगा तो अनरिलेटेड वाले अलग होते चले जाएंगे। मैमेलिया, अभी जितने इमेजेस बच गए हैं, यू कैन सी दिस, दे ऑल बिलोंग टू मैमेलिया। अब आगे देखें, अब कार्निवोरा है तो डॉग हो गया या कैट फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं, दे ऑल बिलोंग टू कार्निवोरा एंड ग्रेजुअली वी आर नैरोइंग डाउन। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बढ़ाते जाएंगे, नैरोइंग डाउन होता चला जाएगा। तो whenever you move from kingdom to species, number of characters increases, उल्टा करो तो डिक्रीज करोगे तो फिर ये यहाँ किंगडम तक पहुंचोगे। नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज एज वी ट्रेवल फ्रॉम किंगडम टू स्पेसीज, किंगडम से स्पेसीज में चलें तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्रीज करेंगे, और जैसे उल्टा चलेंगे नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स घटते चले जाएंगे, राइट। नाउ सी सम एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ हम लोग देखें कुछ एग्जांपल है ऑर्गेनिज्म का विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। जैसे मैन, सबसे पहले बात करें मैन का, तो मैन में देखो
इट्स बायोलॉजिकल नेम इज होमो सैपियंस, इसका बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस है। होमो इज द जीनस, होमिनिडी इज द फैमिली, राइट। प्राइमेटा is the order, Mammalia class है Mammalia, phylum is the Chordata. Similarly, housefly Musca domestica, genus Musca, family Muscidae, Diptera insecta, Arthropoda. Similarly, mango का देखें Mangifera indica, Mangifera is genus, Indica is a species. Anacardiaceae family, Spindles is order, Dicotyledon is the class, Angiosperm is the phylum. Wheat का देखें Triticum aestivum, it is the biological name. Triticum is genus, aestivum is species, right? Poaceae is the family, Poales is order, Monocotyledone is class, Angiosperm is division. So it is important for एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहता है इन क्लास 11, राइट। टैक्सोनॉमिकल एड्स, एक्चुअली देखा जाए टैक्सोनॉमिक वर्क इन्वॉल्व्स स्टडीज बोथ इन फील्ड एंड इन लेबोरेटरी। टैक्सोनॉमिकल वर्क फील्ड में भी करते हैं, लेबोरेटरी में भी करते हैं। द इंफॉर्मेशन thus gathered about the species is to be stored for future taxonomic work. अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जो कुछ भी जानकारी आपने इकट्ठा किया है ड्यूरिंग द फील्ड वर्क और इन लेबोरेटरी, उसको फ्यूचर टैक्सोनॉमिक वर्क के लिए आप स्टोर करके रखेंगे। एक्चुअल स्पेसिमेन आप कलेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर किया जा सकता है फॉर वेरिफिकेशन अगर जरूरत हो तो। फायदा इससे ये होगा कि जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं स्पीसीज की पहचान कर सकेंगे, उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्रॉपर कैटेगरी में उसको रख सकते हैं। सो फॉर दिस वेरी पर्पस दे यूज डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स। इस कार्य के लिए वो अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। These are some common taxonomical aids. उससे आ रहा है हर्बेरियम, you can see this, एक हर्बेरियम है, सबसे पहले आपको दिख रहा है हर्बेरियम, you can see here, हर्बेरियम हो गया। बोटेनिकल गार्डन है, I have to change the ink, okay, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, की, फ्लोरा, manual, monograph, catalogs. These are taxonomical aids which help a taxonomist to identify and classify the organism, right? सबसे पहले बात करेंगे हर्बेरियम का। हर्बेरियम क्या होता है? What is herbarium? Herbarium is actually a storehouse, it is a repository. Storehouse है किसका? Plant specimen that are dried, pressed and preserved on sheet. जैसे इसमें देखिए, इसने किया क्या है, एक शीट लिया है, इस शीट पर प्लांट को प्रिजर्व किया हुआ है, ओके। अब करना क्या होता है इसमें, आप बहुत आराम से समझ जाइएगा कि हर्बेरियम में करते क्या है। हर्बेरियम एक्चुअली it is a collection of plant specimen which have been dried and pressed. आपको करना क्या है, आप करते क्या हो, पहला काम तो ये करोगे, कलेक्ट द प्लांट। प्लांट को कलेक्ट करना है, कहाँ से कलेक्ट करोगे? किसी बोटेनिकल गार्डन से नहीं करना है, नेचुरल हैबिटेट से इसको कलेक्ट करना है। सबसे पहला काम ये करना है। फिर उसके बाद इसको ड्राई करना है, सुखाना है इसको, फिर उसको प्रेस करोगे। प्रेस करने के लिए स्कूल लेवल पे आप कर सकते हैं कि जो पुराने मैगजीन्स हैं उसके अंदर ये प्लांट्स रख दिया मैगजीन्स के अंदर, और फिर वो धीरे धीरे सूखेगा, ठीक है। प्रिजर्व करते हैं, कैसे प्रिजर्व करोगे? एंटी फंगल केमिकल का यूज करके प्रिजर्व करोगे, फिर बाद में इसको
आप ऐसा एक सीट लीजिए, उस सीट पे इसे आप चिपका दीजिए, राइट। ऐसा सीट लेना है इस तरह का, सीधे ये सीट है, ये वाला जिसमें पकड़ा हुआ हाथों से, ये सीट है, और इस सीट के ऊपर पौधा को रख करके ड्राई प्लांट, जो पौधा आपने सुखाया है, प्रेस्ड किया है, उसको रख के टेप से चिपका दीजिए, आराम से ये चिपक जाता है। ठीक है, ये होता है इसका हर्बेरियम को तैयार करने का, मतलब स्पेसिमेन तैयार करने का तरीका। अब इस स्पेसिमेन को आपको रखना है इन हर्बेरियम, इस स्टोर हाउस में। रखेंगे कैसे? रखने के लिए आपको करना होगा फॉलो द क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करना होगा, या बेंथम हुकर का ले लो या किसी का, तो किसी न किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पे इन प्लांट्स को अरेंज करना होगा, तब जाके आप निकाल पाएंगे। तो पहला काम होता है हर्बेरियम में कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन माइंडेड। सबसे पहला काम करेंगे कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, तो इसके लिए रेगुलर फील्ड विजिट करना होगा ताकि पता चलता रहे, क्योंकि देखिए सारे प्लांट्स हर समय नहीं मिलते। ठीक है, प्लांट्स तो उनके टाइम पे ही आएगा, उनका सीजन होता है, तो रेगुलर विजिट करना जरूरी होगा। अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, तो आपको प्लांट्स कलेक्ट करने में आसानी होगी। ठीक है, अब कलेक्शन में जाने के पहले भाई थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए, किस एरिया में जा रहे हो, हैबिटेट में कौन सा हैबिटेट है, किस सीजन में जा रहे हो, है ना। तो फील्ड विजिट से आपको जानकारी मिलेगा। मान लो कि बरसात का पौधा आप गर्मी में ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा, तो वैसे आपको सोच के आपको जाना होगा। ठीक है, फील्ड विजिट में जाना है, चूंकि प्लांट कलेक्ट करना है, तो तुम्हें कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कुछ टूल्स आप ले लो, टूल्स जैसे आप डिगर ले लो, क्योंकि पौधा मिट्टी में खोद के निकालना होगा, तो डिगर आप ले लो। उसका नाइफ रख सकते हैं, पॉकेट लेंस रखो। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आप रख सकते हो। एक आप डिगर ले सकते हो, जस्ट लेट मी रिमूव ऑल द इंक, चेंज द कलर टू व्हाइट। अब देखो इसमें क्या क्या आप लेके जाना है आपको। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको एक डिगर लेना है। ठीक है, वो खुरपी टाइप का चीज होता है, बिहार में उसको खुरपी ही कहते हैं। तो डिगर टाइप का लेके जाना है, जिससे आप उसके मिट्टी को लूज करके पौधा निकाल सके। आप नाइफ ले लो, चाकू भी चाहिए, काटने के लिए होगा। अच्छा, छोटे पौधे को इनलार्ज करके देखना है, तो जस्ट की पॉकेट लेंस भी आप रखो। ठीक है ना। उसके बाद ओल्ड मैगजीन्स रख सकते हैं, ओल्ड न्यूज़पेपर रख सकते हैं, या ऑलरेडी आता है प्लांट प्रेस, ये आपको मिलता है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो कम से कम इतना लेके तो जरूर जाओ। और जिस सीट पे आप प्लेस करोगे, इस सीट को कहते हैं हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट बाद में जरूरत होगा, क्योंकि अभी तो आप प्लांट कलेक्ट करोगे, ड्राई करोगे, प्रिजर्व बाद में करोगे सीट पे, तो उसमें आपको समय लगेगा। तो ये चीज आपको चाहिए होगा। ठीक है, और डोंट फॉरगेट टू कैरी नोटबुक। आप नोटबुक कैरी करना नहीं भूलें, क्योंकि इसके अंदर आप जरूरी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद का जो प्रोसेस है वो है ड्राइंग का। कलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद का प्रोसेस है ड्राइंग का, प्रेसिंग का, फिर आप उसको स्पेसिमेन पे माउंट करोगे। ठीक है, अब देखो हर्बेरियम शीट जो है, आपने ये जो हर्बेरियम शीट यहाँ पर जिसपे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, पौधा जो है वो यहाँ दिस इज द
हर्बेरियम सीट, यही है हर्बेरियम सीट है ये। इस हर्बेरियम सीट पे आपने इस पौधा को प्रेस किया हुआ है, यहाँ इसकी एक लेवलिंग करनी होती है। इस जगह पे देखो समथिंग इज रिटन, ये लेवलिंग है। तो हर्बेरियम सीड्स आर लेबल्ड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। देखिए इससे फायदा हो जाएगा, अगर आप डेट लिखते हो, प्लेस लिखते हो, अंदाजा हो जाता है कि कब और किस जगह पे, किस डेट से तो अंदाजा लग जाएगा कि कौन से मौसम में ये मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है। उसके बाद उस प्लांट का इंग्लिश नेम लिखो, लोकल नेम लिखो, बोटेनिकल नेम अगर संभव है तो लिखिए, उसका फैमिली, कलेक्टर्स नेम, जिसने प्लांट को कलेक्ट किया है वो अपना नाम लिख सके, ताकि इन फ्यूचर अगर इस प्लांट से संबंधित कुछ चीज जानना है तो देन पर्सन कैन कॉन्टेक्ट विद द कलेक्टर। तो ऐसे करना है, ठीक है। सी दिस, ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर इस सीट पे आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये था हर्बेरियम। अब बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन का। बोटेनिकल गार्डन क्या है? दीज आर अ स्पेशलाइज्ड गार्डन हैविंग कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन। एक बाग है, बागीचा है, जिसमें लिविंग प्लांट्स को रखे गए हैं, मतलब पौधा। देखिए यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो, कई तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो ये स्पेशलाइज्ड गार्डन है, ठीक है, जिसमें लिविंग प्लांट को रखते हैं फॉर रेफरेंस एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ईच प्लांट इज लेबल्ड विथ इट्स बोटेनिकल नेम एंड फैमिली। कभी किसी बोटेनिकल गार्डन को विजिट करोगे तो देखना वहाँ पेड़ पे, स्टेम पे एक छोटा सा प्लेट लगा करके उसका नाम और फैमिली लिखा रहता है। फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन कौन है देख लो। रॉयल बोटेनिकल गार्डन, Kew, England. Kew is the place in England. So Royal Botanical Garden at Kew, it is in England. Indian Botanical Garden, Havda. You can see in the image. This is Indian Botanical Garden. National Botanical Research Institute, Lucknow, NBRI. ये कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन थे। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल म्यूजियम का। इट इज अगेन अ टूल। बायोलॉजिकल म्यूजियम, it is a collection of preserved plant and animals for study and reference। तो आप इसमें करते क्या है, प्लांट को या एनिमल को प्रिजर्व करेंगे फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। सी इन द इमेज, ये जितने भी बर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सब बर्ड्स क्या है, प्रिजर्व बर्ड्स। इन बर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है so that we can study। तो म्यूजियम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल म्यूजियम्स, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स and animals for study and reference। The collection of a specimen help in gathering the first-hand information about the habitat, soil and organism of the area। ऐसे आप पता आपको आराम से लग जाएगा। Museum is meant for preserving such plants or their parts which cannot be kept in herbaria। जिसको आप हर्बेरिया में नहीं रख सकते हो, हर्बेरियम में, उसके लिए फिर आप बायोलॉजिकल म्यूजियम उसको रख सकते हैं, ठीक है। सच प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, फंजाई, मॉस, फॉर्न। अगर प्लांट के साइड से देखें तो एल्गी है, एल्गी इसमें रखिए, है ना, फंजाई, ठीक है, और भी हो सकता है मॉस, ठीक है। फर्न्स को भी रख सकते हैं, फर्न्स। अब पूरा जिम्नोस्पर्म तो नहीं रख सकते, पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, इंटायर, ये बहुत बड़ा बड़ा पौधा होता है ट्री, तो इंटायर तो नहीं रख सकते बट यू कैन कीप पार्ट।
एनिमल को भी रख सकते हैं म्यूजियम के अंदर. द एनिमल्स आर आल्सो प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम. द स्पेसिमेन आर फिक्स्ड इन केमिकल सॉल्यूशन एंड आर प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. जैसा स्कूल में देखा होगा म्यूजियम स्पेसिमेन स्कूल लेवल में स्कूल के लैब में आप देखते हो, तो दैट इज फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. ठीक है, 11th में तो ये प्रैक्टिकल भी करना होता है ना. आपको म्यूजियम स्पेसिमेन लेना है, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर स्टडी करने हैं, फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है. तो स्पेसिमेंस आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड लेबल. समझ में आया? तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल म्यूजियम का यूज होता है. अब देखो म्यूजियम में क्या क्या आपको मिलेगा. म्यूजियम कंटेन्स अ स्पेसिमेन preservative solution. See this. A museum contains a specimen preserved in preservative solution in container or jar. आप simple jar में भी इसको रख सकते हैं. simple jar ले लिया, उसके अंदर आपको preservative solution जैसे फॉर्मलिन ले लिया, फॉर्मलिन को आप 10% डाइल्यूट कर लो फॉर्मलिन को, और फिर उसके अंदर आप रख दीजिए डब्बा बंद करके. बहुत इजीली रख सकते हैं. ड्राइड स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, वो भी आप रख सकते हो. ड्राइड एनिमल्स ऑफ प्लांट्स है, उसको भी आप रख सकते हैं. सी एज इट इज केप्ट हियर, आप ऐसा भी रख सकते हो. और क्या मिलेगा? इंसेक्ट्स प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस. ठीक है, दे आर इंसेक्ट बॉक्सेस. ठीक है, ये इंसेक्ट बॉक्स है, इसके अंदर आप इंसेक्ट को रख सकते हैं. कैसे रखते हैं? इंसेक्ट को कलेक्ट किया, किल किया, पिनिंग किया. पिनिंग में क्या करते हैं? एक मेटालिक थ्रेड उनके बॉडी में डालेंगे जिससे उनका शेप बरकरार रहेगा. दिस इज पिनिंग. तो पिनिंग करके फिर प्रिजर्व करके रखें. अच्छा, अ स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स. अब स्टफ्ड लार्जर एनिमल का क्या मतलब है? मान लो कि आपने कोई बर्ड लिया, ठीक है, तो बर्ड का सॉफ्ट पार्ट आप रिमूव कर दीजिए अंदर से. ठीक है, और फिर इसके अंदर आपको फिल कर देना है किसी मटेरियल से जो खराब ना हो. ऐसा मटेरियल आपको लेना है जो डिग्रेड ना हो. उसके बाद पूरे बॉडी के ऊपर आपको प्रिजर्वेटिव अप्लाई करना है ताकि ये खराब ना हो. यू कैन सी द स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स. तो आप देखो बर्ड्स और मैमल्स सी इन इमेज. बड़ा वाला मैमल्स देख रहा है, इसको भी वैसे ही प्रिजर्व किया हुआ है. सिर्फ बाहर का चीज रह गया, शॉर्ट पार्ट हटा दिया, स्टफ कर दिया. नाउ इट इज अवेलेबल फॉर स्टडी एंड रेफरेंस. ठीक है. अच्छा, इसके बाद क्या मिलेगा? कलेक्शन ऑफ एनिमल स्केलेटन्स. एनिमल स्केलेटन्स का कलेक्शन भी आप बायोलॉजिकल म्यूजियम में रख सकते हैं और रखा ही जाता है फॉर रेफरेंस एंड स्टडी. अब बात करेंगे जूलॉजिकल पार्क का. जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? These are the places where live wild animals are kept in protected environment under human care. It helps to learn about their food habits and behavior. अब मान लो कि जैसे आप पटना चले जाओ या कहीं और, तो पटना में आप देखोगे संजय गांधी जैविक उद्यान, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है और जूलॉजिकल पार्क कह सकते हैं, तो वो है. तो वहाँ आप देखिएगा, क्या देखोगे? You will find live wild animals that are kept in protected environment. अब वहाँ स्टडी भी हो सकता है. आप उन ऑर्गेनिज्म को देखिए, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, यह स्टडी किया जा सकता है. So this is zoological park, right? हाँ, ये थोड़ा सा समझना ध्यान से है. की क्या होता है? दिस इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड. की इट इज एन एनालिटिकल मेथड of identification of organism based on similarities and dissimilarity. Similarity और
डिसिमिलरिटी के आधार पे ऑर्गेनिज्म की पहचान की जाएगी, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द contrasting characters generally in a pair called couplet। अब जैसा देखो सामने स्क्रीन पे देखो, each couplet has two opposite options. Of these, only one relevant option is accepted and the other is rejected। अब जैसे देखिए यहाँ ड्राई स्किन, तो इसमें दो अपोजिट हो गया ये चीज, हाँ या ना, नहीं है तो फिर आगे और फीचर्स मिलाना होगा, तो फिर उसमें भी दो आएंगे, ऐसे आते हैं। सो ईच कपलेट हैज टू अपोजिट ऑप्शंस, और एक रिलेवेंट ऑप्शन होगा जिसको एक्सेप्ट होगा और दूसरा रिजेक्ट किया जाएगा। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, है ना। हर एक स्टेटमेंट जो की में है दैट इज कॉल्ड लीड। समझ आया। अब ऑर्गेनिज्म है, अब उसमें देख रहा है कि अरे तो हेयर मिल रहा है, देख रहा है कि ये अपोजेबल थंब है, बाइपेडल है, लाइक दैट, मान लो कि ये सब चीजें आ रही है, तो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड लीड, ये लीड है। तो आपको की का मतलब समझ में आया होगा। एनालिटिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म based on similarities and dissimilarities. It is based on contrasting characters, generally in a pair called couplet. Each couplet has two opposite options, जिसमें एक relevant है जिसको accept किया जाता है और दूसरा reject, and each statement in the key is called lead. Now see key, branching type and bracketed type। तो कीज दो तरह के हैं, एक ब्रैकेटेड टाइप, दूसरा ब्रांचिंग टाइप। अब ब्रांचिंग टाइप में ऐसे ही चलते जाइए, जैसे मान लो ग्राम पॉजिटिव सेल, ठीक है, तो नो या यस दो चीज होगा, है ना। अगर नहीं है तो फिर कैसा है, रॉड शेप्ड है, अगर है तो ये ग्राम पॉजिटिव यही क्लोज हो गया। लेकिन अभी आगे जाएगा, रॉड शेप्ड है तो अब इसमें देखना है कोकाइन टियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, नो, कैन टॉलरेट ऑक्सीजन, यस, तो इसमें भी है तो ऑब्लिगेट है या फर्मेंट्स लैक्टोज करता है कि नहीं। सिमिलरली यू कैन कम टू द कंक्लूजन। तो ऐसे ही इसको कहते हैं ब्रांचिंग। और इसमें तो की ब्रैकेटेड में जैसे ग्राम पॉजिटिव सेल, ठीक है, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव मिला, ग्राम नेगेटिव सेल्स, रॉड शेप्ड सेल्स, नॉन रॉड शेप्ड सेल्स। अब इसमें ऑप्शंस आ रहा है, नहीं है तो नो, है तो है, लाइक दैट, ऐसे बढ़ते चले जाना। दिस इज ब्रैकेटेड की। अब बात करेंगे फ्लोरा का। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा इज द एक्चुअल अकाउंट ऑफ habitat and distribution of plant species of a given area। Mind it, plant species of a given area, किसी पर्टिकुलर एरिया में, राइट। इसी का पूरा डिटेल इसमें होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज आर द, दिस इज फ्लोरा ऑफ पैन हिमालय। अब इस बुक के अंदर आपको तमाम प्लांट्स की जानकारी मिलेगी जो उस एरिया में मिलता है। So this is the flora. It is the actual account of habitat and distribution of plant species। जैसे एक किताब आती है डॉक्टर हेंस की, हेंस फ्लोरा। हेंस फ्लोरा एक बुक है ना, and that include the plants of Odisha, Odisha and undivided बिहार। पहले बिहार झारखंड एक था ना, तो अनडिवाइडेड बिहार और उड़ीसा में
जितने प्लांट्स मिलते हैं हेंस फ्लोरा में आपको मिलता है. So it is the actual account of habitat and distribution of plant species of a given area, right? इसी तरह से मैनुअल्स होते हैं. Manuals are the record that contain information for identification of names of a species found in an area. किस एरिया में कोई स्पेसीज मिला है, अब उसके आइडेंटिफिकेशन पर करनी है, नाम की पहचान करनी है, तो उसमें हम लोग मैनुअल्स का सहारा ले सकते हैं. एंड मोनोग्राफ, these are the records that contain information on any one taxon. किसी एक टैक्सोन का पूरा इस पे चर्चा मिलता है, राइट? सो इस चैप्टर में इतना ही था. कैटलॉग एक रह गया है. कैटलॉग क्या है? एक अल्फाबेटिकल लिस्ट होता है स्पीसीज का इसके अंदर. कैटलॉग लीजिए, अल्फाबेटिकली लिस्ट है. अब उस अल्फाबेट लिस्ट के आधार पे आप उस पेज पे जाके उस स्पीसीज के बारे में इसके फोटो और थोड़े ब्रीफ्स आप उसमें देख सकोगे. सो दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर.